Good morning, dear student. Today we will read a new poem, Rain on the Roof. This poem is written by Coates Kenny. He is an American poet and he was born in 1826 in New York. He was famous for his verse, The Rain on the Roof, which was set to music. It was his most popular poem. Coates Kenny died in Ohio in 1904. Now, first of all, let us know about the poem, know about the summary of the poem. The summary of the poem is in this way. The poem Rain on the Roof reveals the healing power of nature. This poem tells us what the poet feels about when it is raining. The poet feels it is a bliss to listen to the sound of rain while lying in a cozy bed. Then the falling of the rain brings dreamy imagination and 1,000 sweet memories in his mind. The falling of the rain also brings the memory of his childhood and his mother. These memories created a lovely experience. In such a situation, his mother would stay in his dream the whole night long. The poet says that he still feels she is looking at him with great affections. Now come on the first stanza and let us know what is the meaning of the first stanza. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Here the poet is using a very figurative language. एक बहुत ही अलंकारिक भाषा का प्रयोग इसने पोएट ने किया है. What he is saying? When the humid shadows hover over all the starry spheres. Humid shadow? Shadow is not humid, but here the poet used this word in the reference of the clouds. जो clouds हैं, जो बादल हैं, कहाँ पे छाए हुए हैं? Hovers means फ्लोट अबव, ऊपर तैर रहे हैं. किसके ऊपर तैर रहे हैं? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टारी स्फीयर्स के ऊपर, यानी आसमान में जो तारे हैं उन तारों के ऊपर ये जो ह्यूमिड शैडोज हैं यानी कि जो क्लाउड्स हैं वो फ्लोटिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं. एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स. और जो मेलंकली डार्कनेस है, मेलंकली मीन्स दुख भरा जो अंधियारा है, दुख भरा जो अंधेरा है, वो अपने आंसू बहा रहा है. किसके रूप में? रैनी टीयर्स. दैट the tears are in the form of rain. These tears are in the form of rain. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. And it is very blissful. It is very joyful. Blissful means joyful. What a bliss means? It is very joyful. ये बहुत ही आनंददायक है. To press the pillow, कि मैं पिलो को प्रेस करूं. और फिर कॉटेज चैम्बर बेड, कहाँ लेटा रहूं? इन माई कॉटेज चैम्बर. मैं अपने कॉटेज चैम्बर में, अपने जो उसका कॉटेज है उसमें जो उसने अपना स्लीपिंग रूम बना रखा है, उस स्लीपिंग रूम में अपने बेड पे लेटा रहूं. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रैन ओवरहेड. और सुनता रहूं. किसको सुनता रहूं? जो बारिश के बूंदों की आवाज़. पैटर मीन्स द साउंड ऑफ द रैन इज कॉल्ड पैटर हियर. वर्षा की गिरने जिससे जो आवाज़ पैदा हो रही है, उस साउंड को यहाँ पे पैटर कहा गया, जो कि सिंगल्स पे गिर रही है. यहाँ पे एक वर्ड आएगा सेकंड स्टेंजा में, सिंगल. सिंगल्स मीन्स जो टाइल्स हैं रूफ की, उन टाइलों के ऊपर जो बारिश की बूंदों की आवाज़ गिर रही है और उससे जो साउंड क्रिएट हो रही है, उस साउंड को सुनने में पोइट को बड़ा ही आनंद मिल रहा है. ही इज़ लाइंग इन हिज कॉटेज चैम्बर इन हिज रूम एंड लिसनिंग द साउंड ऑफ द रैन विच वॉज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle on the shingles, shingles के ऊपर गिरने वाली प्रत्येक tinkle, tinkle means sound, प्रत्येक आवाज़, has an echo in the heart. वह क्या करती है? echo create करती है
प्रतिध्वनि क्रिएट करती है मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. एंड एट दैट टाइम सो मैनी ड्रीमी फैंसीज मीन्स स्वीट इमेजिनेशंस, बहुत सारी अच्छी अच्छी कल्पनाएं उसके बिजी बीइंग मीन्स इन माय बिजी माइंड, मेरे बिजी माइंड के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं. कई सारी कल्पनाएं, कई सारे सपने मैं देखने लगता हूँ, कई सारी कल्पनाओं में मैं खो जाता हूँ, जबकि मैं अपने रूम में लेटा हुआ उस साउंड को सुनता हूँ, उस पैटर साउंड को सुनता हूँ, उस टिंकलिंग साउंड को सुनता हूँ जो कि बारिश की बूंदों से क्रिएट हो रही है. तो मेरा हृदय जो है इन कई सारी कल्पनाओं में खो जाता है. कौन कौन सी कल्पनाएं? एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और कई सारी रिकलेक्शंस मीन्स कई सारी मेमोरीज में खो जाता है. वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और मैं उनको वीव करने की कोशिश करता हूँ, उनको ताने बाने में बुनने की कोशिश करता हूँ, एक मेमोरी को दूसरी मेमोरी से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, और उन सपनों को देखने की कोशिश करता हूँ. व्हाट टाइप ऑफ इमेजिनेशंस माई माइंड हैज़ बीन क्रिएटेड, आई वॉन्ट टू वॉच ऑल सच टाइप ऑफ इमेजिनेशंस as I listened to the patter of the rain upon the roof. At that time the poet was listening the patter sound which was creating which was falling on the roof and creating a sound, such a type of sound the poet hear, and he was lying in his bed at that time. कवि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था उस समय, और वो जो बारिश की बूंदें जो गिर रही थीं, उन बारिश की बूंदों को सुन करके वो अपनी रिकलेक्शंस को, अपनी मेमोरीज़ को याद करता है, उन्हें वूफ करने की कोशिश करता है, उन्हें वूवन करने की कोशिश करता है, उन्हें ताने बाने में बुनने की कोशिश करता है. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और सबसे पहले उसकी मेमोरी में कौन आती हैं? उसकी मदर आती है. नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो सबसे पहली उसकी मेमोरी जो है, उसकी मदर की मेमोरी आती है, ऐसी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जो कि कई एगोन मीन्स सी पास्ड अवे सो मैनी ईयर्स एगो, माई मदर वाज पास्ड सो मैनी ईयर्स एगो, एंड टू गिव रिगार्ड, अपनी मदर को रिगार्ड देने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी माँ की झलक को लगातार देखने के लिए, द डार्लिंग ड्रीमर्स विच इज़ द डार्लिंग ड्रीमर फॉर द पोएट, जो कि उस कवि के लिए डार्लिंग ड्रीमर बन जाती है उसकी मदर, उसको देखने के लिए. और मीन्स बिफोर सी लेफ्ट दैम टिल द dawn, जब तक मॉर्निंग नहीं हो जाती है तब तक वह कवि अपनी माँ के ही सपनों में खोया रहता है, अपनी माँ को ही ऑब्जर्व करता रहता है, अपनी माँ की रिकलेक्शंस में खोया रहता है, अपने बचपन की यादों में खोया रहता है, और उन्हीं को देखता रहता है. डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग इज कॉल्ड डॉन. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रैन. और पोइट जो है कहता है कि वह अब भी महसूस करता है कि उसकी मदर उसको देख रही है, उसकी तरफ कंटिन्यूस देखती जा रही है, और वर्षा की जो बूंदें हैं, जो कि रेफरेंस मीन्स वर्षा की जो ध्वनि है, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि किसके ऊपर गिर रही हैं वर्षा की बूंदें, वर्षा की जो आवाज़ है वो किससे क्रिएट हो रही है? वो सिंगल्स के ऊपर गिरने से, जो कि रूफ के ऊपर टाइल्स लगी हैं उनके ऊपर गिरने से जो रिफ्रेन क्रिएट हो रही है, जो कि साउंड क्रिएट हो रही है, और जो कि पैटर साउंड है रैन की, उस रैन की साउंड को सुनता जा रहा है, और अपनी माँ की मेमोरी में, अपनी मदर की मेमोरी में, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में पोइट जो है खोता चला जा रहा है. मॉर्निंग का समय हो गया, लेकिन फिर भी पोइट जो है अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ है. सो दिस इज़ द पोएम कंपोज्ड बाय कॉर्ड स्किनिंग. थैंक यू.